So everybody, can you see the rock? Yeah, that's a very good rock. Yeah. Okay, perfect. Nice. Thank you. Thank But do you you. want to share something? Yesterday you were not able to speak anything because of your headphone. Yesterday I started the activity. Okay, writing your gratitude. Nature gratitude in morning, and I had just hold my the stone, and just I slept, and I don't know when I slept, and it was peaceful sleep, sound sleep I got. And from 2 days I'm going on terrace and enjoying the nature, hearing the bird sound, hearing the trees wind sound. So I'm feeling fantastic, and my whole day just went very, like, I'm full of enthusiasm and energetic. So thank you so much, Alifia Bain. You are most welcome. And this is just a beginning. You are going to go. Yes, yes. You are going to get very far. Yes. मैं ये स्टोन भी गोल्डन डब्बी में रखा है ताकि ये गोल्डन हो जाए. Thank you. How nice. Okay, so let's. Thank you लिखा है मैंने ये स्टोन पे दोनों भी. Oh, very nice, very nice. Let me spotlight you so everybody can see you. Oh, that's amazing. इस पे भी लिखा दोनों पे लिखा. ये बहुत ही अच्छा आइडिया है कि इसके ऊपर ही थैंक यू लिख दो, यानी लेने के साथ ही आपको याद आ जाएगा कि आपको ग्रेटिट्यूड करना है. जी, इस पे भी लिखा पर इस पे दिख के नहीं आ रहा है. हाँ. ओके ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस. मैं एक बात शेयर करना चाहता हूँ रिगार्डिंग मैजिक रॉक. एक हेलो. यस यस. मैंने एक आध वीक पहले मंगवा लिया था स्टोन, और मेरे को था कि मेरी वाइफ को मैं ज्वाइन करूंगा तो उसके पहले ये अपना ग्रुप ज्वाइन करेंगे, उसके पहले मैंने उनके लिए भी स्टोन मंगवा लिया था एक जगह से. अच्छा. तो फिर हुआ कि उसने ज्वाइन किया और ये स्टोन उसको इजीली मिल गया पहले से. या यू आर अ गुड प्लानर. पहले से ही प्लान करके रखा था कि आएगी ही आएगी ग्रुप में. वेरी नाइस. जी मैं सरप्राइज थी, 3-4 स्टोन रखे थे. मुझे पता भी नहीं था. आई लव यू जरूर लिखना. क्यों दीदी? थैंक यू, आई लव यू जरूर लिखिए. अगर बड़ा है तो थैंक यू, आई लव यू जरूर लिखना. यस या फिर थैंक यू लिखे तो भी दो हमारे सबसे बड़े वाले जो हमारे फीलिंग्स है, लव और थैंक्स वाला, तो वो दोनों लिख सकते हो. वेरी नाइस आइडिया. रॉक के ऊपर ही लिख सकते हो. मैंने मार्कर पेन से लिखा है, उसको पेंट करना है. उसके एशियन का पेंट लाके कर दूंगी तो वो निकलेगा भी नहीं, मार्कर तो भी निकल जाएगा. यस यस, वेरी नाइस आइडिया. Okay, so should we start our peak state programming or any other sharing or anything? Okay, let's start our peak state programming. Peak state programming. So everyone, hello friends, stand up. I welcome you to peak state programming. And everybody has to do this. This is awesome SRK. In a video. I'm a businessman. Turn on your video, please. And a happiness coach. Change your state, change your story. Peak state programming of our subconscious mind shall be practiced daily morning. Everybody, or at please. any time of the day. This practice can be repeated in the day again and again as required. Turn on your videos, everyone. It's about being in action. The practice is about programming our subconscious mind with a sense of winning. By doing this practice, we shift our mind into gamma frequency, which is the highest alertness of the mind. While doing this practice, the thought and feelings are important. Think and feel that you are running an Olympic race, and yes, you are the winner. You are the winner. Every one of you, each one of you are the winner. And keep yes, I am the winner. The full day.
I am Reena the ji, We are the winner. Ji, By regularly Mansi practicing, ji, you will feel like everybody a winner please turn on and your your energy videos levels and will do this improve. peak state programming. It's about physical action and developing a winning attitude. Do practice this for next 21 days and repeat it as often as possible. This is peak state programming. How to change your mental state instantly. Stand in a running position with the right leg in the front and left ankle raised in a running position. Think and feel that you are running an Olympic race and you are winning. Standing in the same position, just move your hands faster and faster. Okay, so let's start. 3, Okay, let's start. 2, 1, go. Come on, run, run, run. Run faster, run faster. Yes, fast, fast, fast. Run, run. Yes, come on, faster, 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 faster. Yes, fast, 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 fast. Come on, faster, 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 faster. Yes, come on. Yes, you can do it. Come on, fast, fast, faster. Yes, yes. Keep running, fast, fast. Yes, come on, fast, fast, fast. Still faster. Yes, yes, faster, faster. Come on, go fast, go fast. Yes, fast. And now stop, stop, stop. Thank you. Yes, very nice, Yes, very nice, very I'm the nice. winner. We And all you are say the to winners. yourself, I'm the winner. I'm the winner. I'm the winner. Yes, thank you. So now repeat the same practice with your left leg ahead and right leg with the ankle raised behind. We do the same thing again. Okay, so let's start. 3, 2, 1, go. Come on, run, run, run. Come on, run faster, faster, faster. Yes, faster, faster, still faster. Yes, come on. Yes, come on, fast, 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 fast. Yes, come on, fast, 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 fast. Come on. Yes, yes, yes. Run faster, faster. Come on. Still faster. Yes, yes. Come on, faster, faster, faster. Yes, come on, fast, fast, fast. You can do it. Come on. Run faster, still faster. Yes. Run faster. You are going to win. Come on. You're the winner. I'm the winner. Come on. Faster, faster. Yes. Yes, yes, yes. Come on. Yes. Okay. Wonderful, wonderful. Just stop, 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 stop. Thank you, thank you. Yes, And I'm now, the winner. I'm the tell winner. yourself, yes, I'm the winner. Yes, we Yes, all are I'm the the winners. winner. We all are the I'm the winners. winner. I'm the winner. I am the winner. And now we say to ourselves, I can. I can, Repeat, I can. I will, can, I must. I I can. will, can, I must. I will. I must. I must. Thank I you. will. I must. Thank you, thank you, thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Okay, so let's start our books. Who would like to read today? Anybody wants to read today's chapter? It's all about relationships. Okay, I'll read. Shall I read? Yeah, sure. Thank you for coming up. Okay, let me My share. pleasure. Okay, so अभी मैं एज्यूम करती हूँ कि सभी के पास रॉक है. अगर किसी Yes. को कोई क्वेश्चन है रॉक के बारे में तो पूछ सकते हो. Okay, so day 3 magical relationships. Amina, you can let's read actually this picture first. तो यहाँ पे ये पिक्चर में किसी को डिस्क्राइब करना है कि क्या दिखा रहा है यहाँ पे पिक्चर के अंदर. एक टोकरी है, उसमें फल है और फोटोस है, एल्बम है एक फोटो का, और मैजिकल स्पा निकल रहा है और पीछे विंडो है और नीचे का नहीं समझ में आ रहा. हाँ नहीं, यानी यहाँ पे डायरी है. हाँ, डायरी फोटो है, का एल्बम फोटोग्राफ नहीं है, है. 3 पिक्चर्स है. हाँ, हाँ. इंडिविजुअल पिक्चर्स है.
ओके और जैसे ही डायरी के अंदर से स्पार्कल्स निकल रहे हैं, फोटो के अंदर से, डायरी के अंदर से। ओके ओके, तो आपको ये रिलेशंस के बारे में आज करना है, आज की प्रैक्टिस उसी के बारे में है। तो पिक्चर्स लेने हैं 3 आपको। जो भी आपके लव्ड वंस है, यहाँ पे आपको आज ऐसे लोग लेने हैं जिनसे आप ऑलरेडी बहुत प्यार करते हैं, जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, उन लोगों की तस्वीर लेके आपको ये प्रैक्टिस करनी है। Amina, you can read from here. Okay. Imagine if you were the only person on earth, you would have no desire to do anything. What would be the point in creating a painting if no one could see it? What would be the point in composing music if no one could hear it? What would be the point in inventing anything if there was no one to use it? There would be no reason to move from one place to another because wherever you went would be the same as where you were. No one would be there. There would be no scroll करेंगे हाँ, पे? There would be no pleasure or joy in your life. you can read second paragraph also. It's your contact and experiences with other people that gives your life joy, meaning, and purpose. Because of that, your relationships affect your life more than anything else. To receive the life of your dreams, it's vital that you understand how your relationships affect your life now and how they are the most powerful channels for gratitude to start magically changing your life. तो यहाँ पे इन्होंने बहुत ही अच्छे से ये समझाया है कि अगर मान लो आप के पूरे पूरे प्लैनेट के ऊपर आप अकेले ही होते, कोई नहीं होता, तो आप खाली इमेजिन करो, क्या आपको मजा आता लाइफ में? किसी को ना तो सॉन्ग म्यूजिक बनाने में मजा आता, ना तो इन्वेंशन में मजा आता, क्योंकि कोई है ही नहीं उसको यूज करने वाला, राइट? और अगर मान लो आप कहीं पे भी जाते, आपके एक्सपीरियंसेस भी कैसे होते? अभी अगर आपकी लाइफ रिच है, मीनिंगफुल है, तो क्यों? क्योंकि कोई ना कोई इतने सारे लोग आपकी लाइफ में होते हैं जो आपके रिलेशंस होते हैं, वो आपकी लाइफ को मीनिंगफुल बनाते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है हमारी लाइफ में, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, इसीलिए रोंडा बर्न ने इसको तीसरे ही दिन पे लिया है। और यहाँ पे ऐसे रिलेशंस लेने हैं जो ऑलरेडी आपकी लाइफ में अच्छे चल रहे हैं, आपके जो लव्ड वंस हैं, लविंग रिलेशनशिप, वो यहाँ पे आपको लेने हैं। ओके, सो यू कैन स्टार्ट। Science is now confirming the wisdom of the great sages of the past. With research studies that people who practice gratitude have closer relationships and are more connected to family and friends and have other people look upon them favorably. But probably the most astounding statistics that has come out of research study is that everyone complains about another person, whether in thought or word. There have to be 10 blessings for relationship to flourish. Okay. Any less just a minute. sorry. Any less than 10. Less than 10 blessings for everyone complain and the relationship will deteriorate, and if the relationship is a marriage, it will most likely end in divorce. तो यहाँ पे बहुत ही अच्छे से इन्होंने ये समझाया है कि साइंस ने भी कंफर्म किया है फ्रॉम द विजडम ऑफ ग्रेट सेजेस ऑफ द पास्ट, यानी हमारे जो पूर्वजों ने जो विजडम दी है, जो हमें कहा था, उसके हिसाब से भी साइंस ने भी कंफर्म किया है कि लोग जो प्रैक्टिस जो ग्रेटिट्यूड करते हैं, जो शुक्राना करते हैं, उनकी ज्यादा क्लोजर रिलेशंस होती है और दे आर मोर कनेक्टेड टू फैमिली एंड फ्रेंड्स। तो ये एक रिसर्च हुआ है और अनदर रिसर्च भी हुआ है और उसमें से बहुत ही स्टैटिस्टिक रिजल्ट्स बाहर सामने आए हैं। और वो क्या है
कि एक कंप्लेंट अगर आप किसी के लिए करते हो अपने विचारों में या अपनी एक्शन के अंदर, जो भी है, एक भी कंप्लेंट करते हो तो आपको वहां पे 10 शुक्राने करने पड़ेंगे उसको एटलीस्ट लेवल पे लाने के लिए, तो ही वो रिलेशनशिप आपका फ्लरिश करेगा। नहीं तो जितनी कंप्लेन करती जाओगे, जितनी कंप्लेन करते जाओगे, आपके शुक्राने इतने ड्यू होते जाएंगे, क्योंकि पहले तो आपने वो पर्सन को ही ग्रांटेड लिया, टेकन फॉर ग्रांटेड, एंड उसके बाद क्या आप और कंप्लेन करते जा रहे हो, यानी आपकी रिलेशन नीचे 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 की तरफ जा रही है। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप हमेशा ही एक कंप्लेन भी अगर आपने की हो तो आज आपको रियलाइज करके उसके सामने 10 शुक्राने लिखने हैं। तो ये बहुत ही जरूरी है कि जो भी रिलेशन से आपको आपकी लाइफ में, उनको आप वैल्यू करें और उनके लिए जितना हो सके इतना शुक्राना करें। ये बहुत ज्यादा जरूरी है आपकी लाइफ में। तो ही आपके जितने भी रिलेशन से आप ही देखोगे कि अगर अभी वो रिलेशन में जो भी सर्कमस्टांसेस है, मान लो कभी रिलेशन कभी कभी खराब भी हो गया है, इवन हस्बैंड वाइफ का है या बच्चों के साथ है, जो भी है, जितना आप ज्यादा कंप्लेन करते होंगे इतनी आपकी रिलेशन अभी ऐसी ही होगी, जो ज्यादा अच्छी नहीं होगी। तो यहाँ पे आपको उनके लिए ग्रेटिट्यूड लिखना है, शुक्राना लिखना है, जो भी आपका रिलेशन है जिसको आपको फ्लरिश करना है। ओके, तो यू कैन रीड फर्दर आमिना। Gratitude makes relationships flourish. As you increase your gratitude for any relationship, you will magically receive an abundance of happiness and good things in that relationship. And gratitude for relationships doesn't change only your relationships, it also changes you. No matter what your uh, temperament is now, gratitude will give you more patience, understanding, compassion, and kindness to the point where you won't even recognize yourself. The little irritations you once felt and the complaints you had in your relationships will disappear, because when you are truly grateful for another person, there's nothing you want to change about that person. You won't criticize, complain about, or blame them, because you are too busy being grateful for good things about them. In fact, you won't even be able to see anything you used to complain about. तो यहाँ पे इतनी अच्छे से इन्होंने समझाया है कि क्या होता है जब आप ग्रेटिट्यूड करते हो। यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने अपने खुद के बारे में ये अभी नोट किया होगा। आफ्टर डूइंग ग्रेटिट्यूड फॉर 3 मे बी 1 month, 2 months, 3 months, whatever, तो आपने खुद ने अपने खुद के लिए ही नोट किया होगा कि आप खुद इतने बदल गए हो, आप खुद अभी इतने ज्यादा पेशेंट हो गए हो, आप इजीली अभी एक्सेप्ट कर रहे हो, लोग जैसे है वैसे उनको एक्सेप्ट कर रहे हो, आपके अंदर मोर अंडरस्टैंडिंग है, मोर कंपैशन है, किसी के लिए ज्यादा करुणा भाव है, ये सब आपके अंदर चेंजेस होने लगते हैं। और डेफिनेटली रिलेशंस तो आपके बदलेंगे ही बदलेंगे, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, पर उसके साथ साथ आप भी बदल जाते हो, आपके अंदर भी एक तरह का एक विजडम आने लगती है कि लोगों को किस तरह से आपको देखना है। अभी अगर आप हमेशा ही लोगों को देख के जज करते होंगे तो वो भी कम हो जाएगा। नहीं, हम कभी कभी हमेशा जज करते रहते लोगों को देख के बोलते अच्छा ये तो ऐसी है, ये तो दिखने में ऐसी है, इसके तो बाल ऐसे हैं, कितनी सारी चीजें हैं जो हम उनके बारे में सोच लेते हैं तुरंत मिलने के बाद या जो भी है, वो सब भी आप में आपके अंदर कम हो जाएगा, क्योंकि आप पूरी तरह से जब शुक्राना में रहते हो, आप इतने बिजी होते हो शुक्राना करने में कि आपको ये सब चीजें फिर अफेक्ट भी नहीं करती, क्योंकि आप अपने अंदर की आपका जो अपने खुद के साथ का भी जो रिलेशन है
वो भी धीरे धीरे बदलेगा। इसीलिए ये प्रैक्टिस 3rd डे पे है, क्योंकि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रैक्टिस। और यहाँ पे खुद के साथ के भी रिलेशन की बात फिर बाद में की है। पहले इन्होंने आपके जो रिलेशन से उसके बारे में ग्रेटिट्यूड लिखने की बात है यहाँ पे। इसीलिए आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारी लाइफ में जो भी रिलेशन है उनके बारे में हमें शुक्राना करना, उनके बारे में अच्छा फील करना कितना ज्यादा जरूरी है। और कोई ऐसा रिलेशन होगा जहाँ पे बहुत ज्यादा कंप्लेन की है, तो आपको ये कॉन्सेंट्रेटेड प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, क्योंकि एक बार खाली 10 शुक्राने करने से या 5 शुक्राने करने से वो रिलेशनशिप ठीक नहीं होगी। आपको रोज रोज उनके बारे में कुछ ना कुछ 5 अच्छी चीजें देख के लिखनी होगी, फोटो को सामने रख के। तो ये आपको यहाँ पे समझना है। और ये पूरी जर्नी आपके बारे में है, देखना आप कैसे चेंज होते हो ये जर्नी के साथ। कैसे आप कोई भी सिचुएशन में, हीटेड सिचुएशन कभी कभी हमारी किसी के साथ हो जाती है, अगर आप बहुत गुस्से वाले हो, अभी आपको छोटी छोटी बातों में गुस्सा आता है, तो भी आप बदल जाओगे। आमीना, आपको यहाँ पे कुछ बोलना था या पूछना था? हाँ, मैं यही इसी के संबंध में कहना चाहती हूँ कि डेफिनेटली फर्क पड़ता है ग्रेटिट्यूड करने से, कि मुझे अपने आप में काफी चेंज फील होता है। वही चीज के अभी जज करना बंद कर दिया है लोगों को। हाँ, पहले इंटेंशनली अनइंटेंशनली काफी बार हम लोग बोलते, सबके फ्लो के साथ में भी बोलना शुरू कर देते थे, चाहते नहीं थे लेकिन सब बोल रहे थे, हाँ हम भी बोलना शुरू कर देते थे ऐसा। लेकिन अभी अवेयरनेस आ गई है, अब नहीं बोलते हैं, एटलीस्ट उनको पार्टिसिपेट नहीं होते। अगर डिस्कशन अभी ग्रुप जैसे बैठे हैं, सब लोग नेगेटिव बात कर भी रहे हैं, कुछ क्रिटिसाइज कर भी रहे हैं, हम लोग पार्टिसिपेट नहीं करते उस सारी चीजों में। वेरी नाइस, वेरी नाइस। या ऐसे ही होता है, क्योंकि क्या होता है कि आप जितना सबके गॉसिपिंग वगैरह भी आपको बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि इतना समझ लो, जो भी आप नेगेटिव बोलते हो किसी के बारे में या नेगेटिव करते हो, उससे आपका ही डैमेज होता है, किसी और को नहीं होगा। हाँ, वो क्योंकि कभी कभी वापिस से हो जाता है, कभी कभी बाई चांस भूल से बोल जाते हैं ना, वो एकदम कंडीशनिंग होती है ना इतने साल की, लेकिन एटलीस्ट वो वापिस से वो अवेयरनेस आ जाती है कि नहीं करना है करके, वेरी नाइस, कभी हो यस, भी जाता है तो। वेरी नाइस। तो यहाँ पे आपको यही समझना है कि जिसके बारे में आप ज्यादा कंप्लेन करोगे, जितना आप, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या बोलता है, जो आप दोगे वही मिलेगा। तो रिलेशन, अगर कोई रिलेशन आपको ठीक करना है, मान लो अभी वो रिलेशन बिगड़ चुका है या कुछ भी है वो रिलेशन में, अभी आपको ही इसकी जिम्मेदारी लेके आपको ही देना पड़ेगा वो रिलेशन में फर्स्ट, तो ही आपको वापस मिलेगा। तो हमेशा लाइफ में ये बात को बहुत अच्छी तरह से समझ ले कि जो भी आप देते हो वही आपको मिलेगा। तो यहाँ पे थॉर्नटन वाइल्डर ने क्या बोला है? कुछ और भी you can बोलना read. चाहती हूँ मैं। हाँ हाँ, माई आइडिया फॉर ग्रेटिट्यूड इज लाइक, मैं नेगेटिविटी को ना वो तीर की तरह समझती हूँ और ग्रेटिट्यूड को ढाल की तरह समझती हूँ। तो कभी भी कुछ नेगेटिव आता है तो मैं इमेजिन करती हूँ कि मेरे पास ढाल है ग्रेटिट्यूड की, और मैं अपने आप को प्रोटेक्ट कर रही हूँ सारे तीर जो आ रहे हैं कभी भी नेगेटिविटी के। अमेजिंग अमेजिंग, दैट्स अमेजिंग। दैट हाँ कीप्स तो मी अलर्टनेस आ गई है शॉर्ट। यस यस, वेरी नाइस आमिना, थैंक यू फॉर शेयरिंग। So yeah, this analogy is very nice, very nice, and kind of कैसा है कि आपके खुद का एक स्ट्रक्चर बन गया जो आपको हमेशा याद दिलाएगा कि जैसे ही आप किसी के बारे में कंप्लेन, इवन विचारों में भी स्टार्ट करते हो, तुरंत ही आपको याद दिलाएगा कि भाई ये तो तीर आ रहे हैं मेरी तरफ जो मुझे ही डैमेज करेंगे। तो आपने तुरंत ही ग्रेटिट्यूड को अपना ढाल बना लिया। वेरी नाइस एनालॉजी। Okay, you can read further. यहीं से ना, वी कैन ओनली बी हाँ, सेड, वही से। we can only be said to be alive in those moments when our hearts are conscious of our treasures, said by Thornton Wilder.
Wilder in 1897 to 1975, writer and playwright. You can आगे start बढ़ो. reading. Words are very powerful. So when you complain about any person, you actually harm your life. It is your life that will suffer. By the law of attraction, whatever you think or say about another person, you bring to you. This is very reason why the greatest minds and teachers of the world have told us to be grateful. They knew that for you to receive more in your life, for your life to magically increase, you have to be grateful for others just as they are. What if every person close to you said, I love you, just the way you are? How would you feel? हाँ, तो यहाँ पे लोग कैसे भी हो सकते हैं. आपको लगेगा कि नहीं, ये तो लोग ऐसे हैं, मैं इनके लिए क्यों ग्रेटिट्यूड करूँ, ये तो हमेशा ऐसा बोलते हैं या हमेशा ऐसा करते हैं. नहीं, आप ही हो जो सफर करोगे. अगर आपको ये लगता है कि ये पर्सन ऐसा है या जो भी है, वो उसकी साइड से वो जो भी है, आपकी साइड से आपको हमेशा ग्रेटिट्यूड में ही रहना है, शुक्राना ही करना है, क्योंकि आपको अभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता चल गया है वो कैसे काम करता है. जो भी आप किसी के बारे में सोचते हो या करते हो, वही आपको वापस मिलेगा. इसीलिए इतने सारे लोगों ने ग्रेट माइंड्स जितने भी हमारे पास्ट में थे या अभी भी है, वो लोग हमेशा आपको ग्रेटिट्यूड करना ही सिखाते हैं. वो हमेशा ही बोलते हैं कि भाई शुक्राना में रहो, शुक्राना करो. और जैसे ही आप ये करते हो, जैसे ही आप दूसरों के लिए भी शुक्राना करते हो, ऐसा नहीं है कि दूसरों का तो जो भी होना है वो तो होगा, आपके उनके साथ रिलेशन तो बदलेंगे, पर आपकी लाइफ में और चीजों में भी आप देखोगे कि और चीजों में भी आपका कुछ ना कुछ मैजिकली लाइफ इंक्रीज होने लगती है. जैसे आप फ्लरिश करोगे और एरियाज में भी, मनी का एरिया है या फिर कुछ भी है, सभी एरियाज में आपको बहुत फर्क पड़ेगा जब आप दूसरों के लिए ग्रेटिट्यूड स्टार्ट करते हो. ये बहुत ही जबरदस्त प्रैक्टिस होती है. मैंने इनिशियली जब स्टार्ट किया तब हर बार मुझे एक भी अगर, यानी ऑफ कोर्स थॉट आते हैं ऑटो पायलट पे तो आ जाते हैं, तो कोई बात नहीं. जैसे ही थॉट आता है या किसी ने अगर किया वो हमें बुरा लगा, तुरंत ही उनके बारे में आपको ग्रेटिट्यूड लिख देना है. तो एटलीस्ट आपका माइंड वहां पे क्लियर हो जाएगा. क्योंकि कभी कभी वो एक थॉट किसी के बारे में नेगेटिव जब हमारे माइंड में आता है, क्या होता है, दूसरे बहुत सारे ऐसे नेगेटिव थॉट्स को वो लेके आता है और वो बढ़ता ही रहता है माइंड में. कभी कभी हम राय को भी पहाड़ बना देते हैं. चीज इन्होंने थोड़ी सी ही की होगी, मान लो आपके हस्बैंड ने थोड़ा सा ही आपको बोला, पर आपने उस चीज को इतना पर्सनली लेके उसको इतना बढ़ा दिया, अपने माइंड में बहुत बड़ा कर दिया, और वैसी ही सर्कमस्टांसेस आप अट्रैक्ट करोगे अपनी लाइफ में. तो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा समझना जरूरी है. और इसमें कैसा होगा, मैं एक और आपको बात यहाँ पे समझाती हूँ कि जितना आपने किसी के लिए हर्ट किया, अंदर से हर्ट हुए होंगे कि इन्होंने मुझे ऐसा बोला, इन्होंने मुझे ऐसा बोला, इन्होंने तो मेरी लाइफ बर्बाद कर दी, जो भी जितना आपने नेगेटिव सोचा होगा या बोला होगा उनके बारे में, ये सभी समझना, ये पूरी बहुत खराब तरीके से अभी पैटर्न बनी हुई है आपकी लाइफ में, क्योंकि आपने सालों से ऐसा सोचा है उनके बारे में. ये आज की बात नहीं है या 2 दिन की 3 दिन की बात नहीं है, आपने सालों से उनके बारे में सेम थिंग अगेन एंड अगेन सोची है और कंप्लेन की है. तो अगर आपको अगर ऐसा कोई रिलेशन है जो आपका क्लोज है, तो आपको वो रिलेशन में बहुत कॉन्सेंट्रेटेड ग्रेटिट्यूड्स करने पड़ेंगे. बहुत जगहों पे माफी भी आपको मांगनी पड़ेगी. कहीं ना कहीं पे आप हर्ट हुए हो, आपने नेगेटिव फीलिंग्स दी है, तो आपको ही उसके फॉरगिवनेस के लिए भी मांगना पड़ेगा, जो भी पर्सन है. तो ये बहुत ही जरूरी है कि आप अपने रिलेशनशिप को ज्यादा
अच्छा करने के लिए आपके हाथ में ही है, सब कुछ आपके हाथ में है। अगर आप बोलोगे कि वो पर्सन बदल जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। आपको लगेगा कि नहीं, ये पर्सन ही ऐसा है, इसी को बदलना पड़ेगा अगर ये रिलेशन को अच्छा करना है। नहीं, आप पूरी लाइफ ऐसे एक्सपेक्ट करते रहोगे और रिलेशन हमेशा डिटेरियोरेट ही होती जाएगी, वो कभी अच्छी नहीं होगी, इतना समझ लीजिए। यही दुनिया का नियम है और ऐसे ही हमारी लाइफ चलती है। जब तक आप देते नहीं है, तब तक आपको नहीं मिलेगा कुछ भी। यानी हमें ग्रेटिट्यूड तो करना ही है, फिर हमें हमारी एक्शन भी ऐसी होनी चाहिए कि हाँ, वो हम उस लोगों के लिए शुक्रगुजार है अपनी लाइफ में। ओके, तो यहाँ पे ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। दीदी एक क्वेश्चन, यस, पण सामनावालाही नेगेटिव्ह रहा, सामनावालाही नेगेटिव्ह थॉट्स डाला। सपोज मेरे पास 50,000 रुपए, सामने वाला सोचता है कि मेरे पास से कैसा खींचना, फिर जब मीठी मीठी बातें करता है, फिर रुपए लेने के बाद फिर वैसे ही क्रॉस करता है, जब अपन ने क्या करना चाहिए? देखो एक बात समझ लो, अपनी लाइफ में हमारी लाइफ जो भी है हमारे आसपास, वो हमारा ही मिरर रिफ्लेक्शन है, हमारा ही है। अगर आपको मान ले पास्ट में कैसा किसी ने ऐसा किया, उस टाइम पे आपने वो वाले थॉट को बहुत पावर दे दी, राइट? तो ऐसा कभी कभी बार बार भी आपके साथ होगा, क्योंकि वो नेगेटिव जो चीज आपके साथ हुई, आपने उसको बहुत ज्यादा पावर दे दी, इसलिए वो चीज आप बार बार अट्रैक्ट भी करते हो। समझ में आया आपको? तो अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी ने आपको पैसे लेने के लिए ऐसे करते हैं फिर चले जाते हैं, कहीं ना कहीं में आपकी थिंकिंग में ही ऐसा है, आपकी खुद की ऐसी एक बिलीफ बन गई है कि लोग ऐसा करते हैं कि पैसों के लिए आते हैं और फिर चले जाते हैं। ये आपकी खुद की एक बिलीफ बन गई है, कहीं ना कहीं पे पास्ट पे एक्सपीरियंसेस की वजह से आपकी ये बिलीफ बनी है। तो आपको अभी ये बिलीफ तोड़नी है, लोगों पे विश्वास करना है। मैं आपको बताती हूँ, मैंने कहीं कई बार ये पढ़ा था, और जब मैं यहाँ पे यूएस में आई थी, जब मैं यहाँ पे फॉर्म्स भरती थी जॉब के लिए, तो वो लोग हमें ये एक्चुअली एक ऐसे फॉर्म क्वेश्चनर्स फिलअप करवाते थे, और हमेशा क्वेश्चनर में ये क्वेश्चन होता था, डू यू ट्रस्ट पीपल? ऐसा क्वेश्चनर होता था। फिर मैंने उसके बारे में थोड़ा रिसर्च भी किया कि ये जो क्वेश्चनर बनते हैं किस तरह से बनते हैं, क्योंकि वो साइकोलॉजिकली आपको टेस्ट करते हैं कि आप कितने साउंड हो, कितना आप लोगों को ट्रस्ट करते हो, कितना आप लोगों को पॉजिटिवली देखते हो, वो सब के लिए वो क्वेश्चनर्स बनते थे। और वहां पे ये 5 होते थे, जो उसके चॉइस होती थी, 5 होती थी, या तो वेरी वेरी यानी वेरी गुड, गुड, ऐसे ऐसे न्यूट्रल, नॉट गुड, नॉट सो गुड, ऐसे टाइप के 5 हमें उसमें चॉइसेस दी होती। तो वो साइकोलॉजिकली आपको टेस्ट करता है कि आप कितने पॉजिटिव पर्सन हो लाइफ में, आप लाइफ को कैसे देखते हो, होप की तरफ से देखते हो या हमेशा नेगेटिविटी की तरफ से देखते हो। तो ये सब आपके ऊपर है, आप कैसे, आप जैसे होंगे वैसे ही मिरर रिफ्लेक्शन आपकी लाइफ होगी। अगर आप ऐसे हैं कि ज्यादा लोगों को ट्रस्ट करते हैं, तो आपको ऐसे ही ट्रस्ट वाले लोग ही ज्यादा मिलेंगे अपनी लाइफ में। अगर आप ऐसे हो कि शक करते रहते हो हमेशा लोगों पे कि यार ये इसने मेरे साथ, ये इसीलिए मेरे साथ बात कर रहा है क्योंकि इसको कुछ ना कुछ चाहिए, अगर आप ऐसा सोचते रहते हो, आप शक करते हो, तो हाँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे ही लोग आपके लाइफ में लाएंगे। तो आपको यहाँ पे ये समझना है। ठीक है सरिता जी? थैंक यू। आंसर पता चला ना? ओके, तो या यू कैन स्टार्ट। लेट मी सी, एक्चुअली सब किसी और का भी क्वेश्चन था चैट के अंदर, तो मैं देखती हूँ एक सेकंड। यस, माफी हमें लिख के मांगनी होती है, सामने जाके नहीं, सामने कभी नहीं जाना है। अगर हाँ सामने जाके मांग सकते हो, बहुत ही क्लोज रिलेशन है तो जाके भी मांग सकते हो, बहुत ही अच्छी बात होती है। पर अभी आपको वैसे आप अपने अंदर से भी माफी मांग सकते हो, आपको जाने की जरूरत नहीं है वैसे।
ये पूरा ही खेल अंदर का खेल होता है, पूरा ही हमारे सोच में, हमारे फीलिंग्स में होता है। तो अगर आप अच्छे मन से, सच्चे मन से किसी के साथ माफी मांगते हो, दिल से माफी मांगते हो, अपने अंदर ही माफी मांगते हो, तो हाँ, वो जरूर काम करती है। तो जरूरी नहीं है कि आपको वो पर्सन के सामने जाके बोलना है, ऐसा जरूरी नहीं है। आप अपने सच्चे मन से, सच्चे दिल से, अंदर से भी कर सकते। ओके अनुष्का जी, you got your answer? Okay, perfect. So let's read further. Today's magical practice is being grateful for people just as they are. Even if all of your relationships are currently good, they will increase with more magnificence through this practice. And with everything you find to be grateful for in each person, you will see gratitude perform its breathtaking magic, and your relationships will be stronger, more fulfilling, and more enriching than you ever thought they could be. तो आपकी रिलेशन बहुत अच्छी तरह से, बहुत ही मैजिकली चेंज हो जाएगी, ये मैं आपको गारंटी देती हूँ। आपके रिलेशन अभी जो भी है उससे कोई मतलब नहीं है, पर हाँ, आप ठान लेते हो कि हाँ, मुझे ये रिलेशंस को अच्छा करना है, मुझे अपनी खुद की लाइफ अच्छी करनी है, तो आपको ये बस कॉन्सेंट्रेटेड ग्रेटिट्यूड करना है। अगर आपने वो रिलेशन के बारे में बहुत ज्यादा कंप्लेन की है, पर जैसे जैसे आप ग्रेटिट्यूड करते जाओगे, वैसे वैसे आपकी रिलेशन इतनी एनरिचिंग हो जाएंगी, इतनी फुलफिलिंग होगी, और रिलेशन भी इतना स्ट्रॉन्ग होगा कि आपको मजा ही आ जाएगा लाइफ से, कि वाओ, ऐसा भी होता है। ऐसा भी होता है कि जब आप अपने अंदर से चेंज होने लगते हो, अपने थॉट्स को आप अच्छा प्यूरिफाई करते जाते हो, सामने चीजें ऐसे बदलेंगी जैसे कुछ मैजिक ही हो रहा है। ये आप खुद करके देखना। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके साथ ऑलरेडी ऐसा हो चुका है। तो बतुल, यू वांट टू say something here? You unmute yourself. Oh, look. Okay. Okay, so yeah, let's read further. Choose 3 of your closest relationships to be grateful for. You might choose your wife, your son, your father, your boyfriend, your business partner, and your sister. You might choose your best friend, your grandmother, and your uncle. You can choose any 3 relationships that are important to you, as long as you have a photograph of each person. The photograph can be just of the person or both of you together. तो आपको इंडिविजुअल पिक्चर्स लेनी है, और आपको ऐसे 3 लोगों को चुनना है जो आपकी लाइफ में अभी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी रिलेशन है, वो मे बी आपके पेरेंट्स के साथ का हो सकता है, मम्मी के साथ या पापा के साथ, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं, कोई भी जो आपके बहुत क्लोज रिलेशन है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपकी सिस्टर हो सकती है, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, फादर, कुछ भी, तो वो आपको यहाँ पे लेना है, ठीक है। और उनके तीनों के फोटोग्राफ्स आपके पास होने चाहिए, या तो आपके साथ भी हो सकते हैं फोटोज, या इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, ये आपके ऊपर है। ओके, सो यू कैन रीड फर्दर। Once you have selected your 3 relationships and photographs, you are all ready to set the magic into motion. Sit down and think about the things you are the most grateful for about each person. What are the things you love the most about this person? What are their best qualities? You could be grateful for their patience, ability to listen, talents, strength, good judgment, wisdom, laugh, sense of humor, eyes, smile, or kind heart. You could be grateful for the things you enjoy doing with the person, or you can recall the time when the person was there for you, cared for you, and supported you. तो यहाँ पे आपने अपने ये जो 3 पर्सन लिए आपकी लाइफ के अंदर से, उनके बारे में आपको कुछ भी अच्छा बेस्ट क्वालिटीज
मतलब जो भी उन्होंने अच्छा आपके लिए किया होगा, या उनके अंदर कुछ ना कुछ बहुत ही अच्छी बातें होंगी जो आपको बहुत पसंद है, जो आपने अभी तो ऐसा भी होगा कि आपने कभी वो पर्सन के बारे में कंप्लेन करने में इतना आप बिजी थे कि आपने कभी नोट ही नहीं किया कि इनके बारे में क्या अच्छी चीजें हैं। तो आपको अभी ये ढूंढना है अच्छी अच्छी चीजें उनके बारे में निकाल के। आज तो खाली आपको 5 ही चीज करनी है, यानी 3% जिसको आपने लिया उनके बारे में कुछ भी 5 अच्छी बातें आपको लिखनी है। जो भी है, इन्होंने अगर कुछ आपके लिए अच्छा किया है, या तो उनकी आईज अच्छी है, उनकी स्माइल आपको बहुत पसंद है, या उनका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है, बहुत ही हंसाते हैं आपको, सबको भी हंसाते होंगे, जो भी है। मे बी आप उनसे हमेशा बात करके आपको बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उनकी विजडम आपको मिलती है, जो उनके अंदर जो भी अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपको मिलती है। कुछ भी है उनके बारे में, आपको जो भी पसंद है, मे बी वो कंप्यूटर में बहुत अच्छे हैं, आपको कभी कभी प्रॉब्लम सॉल्व करके दे देते, कुछ भी है, आपको सभी चीजों को याद करके उनके बारे में अच्छी चीजें लिखनी है। दैट्स इट। Okay, so let's see. After you have spent some time thinking about what you are grateful for about the person, put their photographs in front of you and with a pen and notebook or on your computer, choose the 5 things you are the most grateful for. Look at the photograph of the person as you make your list of 5 things. Begin each sentence with the magical words, thank you. Address the person by their name and then write what you are grateful for. For example, thank you, their name, for what? हाँ, यानी अगर मैं अपनी बेटी को लूं यहाँ पे, तो थैंक यू मारिया फॉर बीइंग सो काइंड, या अपने कोई भी रीजन आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, तो उस तरह से आपको लिखना है, और फोटो आपके सामने ही रख के कोई भी 5 चीजें उनके बारे में लिखनी है, और नाम लेके आपको लिखना है, थैंक यू, नेम एंड देन रीजन। तो यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है कि थैंक यू जॉन फॉर ऑलवेज मेकिंग मी लाफ, और थैंक यू मॉम फॉर सपोर्टिंग मी थ्रू कॉलेज। तो यहाँ पे आगे यू कैन रीड अमीना। Scroll. हाँ, स्क्रॉल्ड अप है, व्हेन यू फिनिश्ड योर लिस्ट। वहां से है, थोड़ा हाँ, नीचे है। ये मैंने पढ़ लिया यहाँ पे जो भी था, थैंक Okay. यू जॉन वाला। Okay. When you have finished your list of all 3 people, continue with this magical practice by taking the photograph with you today and putting them in a place where you will see them often. Whenever you look at the photograph today, thank the person by saying the magical words, thank you, and the person's name. Thank you, Hali. हाँ, तो यहाँ पे आपको ये फोटो के सामने रख के, अगर आप कर सकते हो तो सुबह में ये प्रैक्टिस करनी, क्योंकि फिर पूरे दिन में आपको जितनी बार हो सके आपको ये फोटोग्राफ सामने रखने हैं, और उनके सामने देख के आपको थैंक यू बोलना है। और ये प्रैक्टिसेस जो भी दी है यहाँ पे, इसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन है, तो उसको डिस्काउंट मत करना। ऐसे नहीं कि आप रात को लिखने बैठे हो वो पर्सन के बारे में, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो ये आपको सुबह सुबह में ही, भले आप कदाच वो ग्रेटिट्यूड के साथ नहीं लिख पाओ तो कोई बात नहीं, उसके बाद तुरंत ही जब भी आपको टाइम मिलता है, मान लो 10 बजे 9 बजे, जब भी आपको टाइम मिलता है फटाफट लिख दो। 5 चीजें लिखनी है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, हार्डली 5-10 मिनट लगते हैं। ओके, और उसको लिखने के बाद तीनों पिक्चर्स को आपको सामने ही रखना है। तो जब भी आपकी नजर जाती है तो आपको बोलना है थैंक यू, वो पर्सन के सामने देख के। तो ये कोई भी यहाँ पे प्रैक्टिस दी है उसको बिल्कुल डिस्काउंट मत करना। अगर इन्होंने ऐसी प्रैक्टिस दी है तो कहीं ना कहीं पे इनका खुद का रिसर्च छिपा हुआ है, और बहुत कुछ चीजें अंदर छुपी हुई होती है। तो ये जैसे बोलती है वैसे ही आपको करना है।
क्योंकि हमने एक्सपीरियंस किया हुआ है बहुत बार। थोड़ा सा भी इधर उधर करोगे तो फिर ये काम इतनी अच्छी तरीके से नहीं करता है। और आपको तो मैजिक बहुत जल्द अपनी लाइफ में लाना है, इसलिए आपको प्रैक्टिस जितना हो सके इतना डिलीजेंटली करनी है। ओके, किसी को क्वेश्चन है यहाँ पे? आमिना, आपको कोई क्वेश्चन था? हाँ, दीदी, हाँ हाँ बोलो। जैसे आप एक व्यक्ति के लिए 5 एफर्मेशन लिखना है ना? एफर्मेशन नहीं, नियामतें लिखनी है। नियमित हाँ, मीन्स हाँ, एक व्यक्ति के लिए 5 लिखना है। यस यस। ओके। अनुष्का, आपको कुछ पूछना था? मेरा क्वेश्चन ये था, क्वेरी था कि जो दिन में रिपीटेडली देखने का जो रहता है तो वो मोबाइल से ही देख सकते हैं ना उनको? हाँ हाँ, वो मोबाइल से देख सकते। अभी फोटोग्राफ्स तो ज्यादातर हम लोग रखते नहीं है किसी के, तो जो पर होता है मोस्टली यहाँ पे मोबाइल। तो लव्ड वंस के ही लेने हैं, तो लव्ड वंस के तो मोस्टली हमारे घर में पिक्चर्स होते हैं। पर हाँ, अगर अच्छा। नहीं है आपके पास तो कोई बात ओके। नहीं, आप पिक्चर फोन में भी रख सकते हो। अच्छा, तो ये पर अलग है और दूसरा रिलेशन वाला अलग है ना? फोटोग्राफ, ये थोड़ा कंफ्यूज होगी मैं। रिलेशन इम्प्रूव करने वाला नहीं है, ये लव्ड वंस के लिए ही है। ये लव्ड वंस के लिए, वो डिफिकल्ट रिलेशन वाला चैप्टर अलग है हमारा। ओके, मैं थोड़ा यहाँ पे कंफ्यूज तो हो गई। हाँ नहीं, यहाँ पे तो लव्ड वंस के लिए ही लेना है, जिसको जो इम्पोर्टेंट है आपके रिलेशंस। आपके हस्बैंड का हो गया, बच्चों का हो गया, माँ बाप के साथ हो गया, मे भी भाई बहन का भी ले सकते हो, कोई फ्रेंड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उनका भी ले सकते हो, जो भी है अभी वो अच्छा ही रिलेशन है, वही आप ले सकते हो। अनुष्का, आपको क्या क्वेश्चन है? हाँ, मेरा ये क्वेश्चन था कि ये आज की एक्सरसाइज है 5 सेंटेंस लिखना, तो ये अभी मतलब कल की एक्सरसाइज फिर कल नहीं होगी, तो ये डेली लिखना है अभी या आज के दिन ही सिर्फ लिखना है? नहीं, ये आज की ही प्रैक्टिस है, ये बस एक ओनली ही एंड दिन आज ओनली फॉर टुडे। हाँ, हाँ अच्छा फिर कल चेंज होगी तो दूसरी करनी है। हाँ, कल दूसरी, जैसे हमने फर्स्ट डे पे इन्होंने हमें नियामतें लिखना सिखाया, राइट? तो वो 10 हाँ नियामतें अभी रोज लिखनी है, उसमें कोई वो नहीं है। ओके, फिर हाँ उसके बाद रोज अभी कुछ ना कुछ एक एक प्रैक्टिस वो देंगी हमें। जैसे कल हमारी रॉक प्रैक्टिस उन्होंने दी थी हाँ कि आपको ये रॉक लेके रोज अभी रात को ऐसे सोना है। अच्छे दिन में, पूरे दिन में क्या अच्छी बात हुई उसको सोच के, उसके बारे में कौन सी बेस्ट चीज हुई पूरे दिन में, वो सोच के आपको सोना है। अभी आज की ये जो प्रैक्टिस है वो आज के दिन के लिए ही है, ऐसा नहीं बोला है कि नेक्स्ट 28 डेज के लिए आपको करना है, ऐसा यहाँ पे नहीं बोला है। ठीक है, पर आज का तो आधा दिन निकल गया ना दीदी? आपके लिए तो ये कल है ना, मैंने बताया ना आपको, जो भी आपकी प्रैक्टिस होगी, जैसे रॉक प्रैक्टिस है वो आपके लिए आज होगी, अच्छा, जैसे रिलेशनशिप की प्रैक्टिस आपके लिए कल स्टार्ट होगी। हाँ, ठीक है, right. ओके। किसी और को क्वेश्चन है यहाँ पे? मैंने जरा लेट ज्वाइन किया है, तो आप ग्रुप पे लिखे कि कौन सा रिलेशन प्रैक्टिस करना है ताकि मैं कल कर सकूं। हाँ हाँ, हमारे ग्रुप में रोज ये जो हातिम करके है वो रोज डालते हैं, जो भी प्रैक्टिस होती है हिंदी में इंग्लिश में भी डालते हैं, वो हार्ट थॉट भी डालते हैं रोज। ओके ओके, हाँ, थैंक वो यू। रोज भेजते हैं अपनी ग्रुप के लिए ही प्रैक्टिस, तो हाँ, उसमें देख के आप कर सकते। जो हम लोग इधर रोज सिखाते हैं ना, उसमें से थोड़े पॉइंट्स 10 पॉइंट्स में हमने आज क्या सीखा वो भी अगर डाल दिया जाए ना तो बहुत अच्छा होगा, रिवीजन हो जाता है। मैं क्या है रोज का ऊपर का भी स्टार करके रखती हूँ, तो भाई फर्स्ट डे हमने रिवीजन में ये 10 पॉइंट्स थे मेन, 10 पॉइंट्स में हमारा आज का शेड्यूल अगर रखा जाए, आज का जो लर्निंग है वो रखा जाए ना तो बहुत मजा आएगा। कोई बार हमें कंटिन्यूअस पढ़ना हो ना कि हमने आज तक क्या पढ़ा, कंटिन्यूअस में तो मजा आता है। यानी मैं समझी नहीं, है रोज का रिफ्लेक्शन आप बोल रहे हो कि रोज का हाँ, रिफ्लेक्शन? रोज का रिफ्लेक्शन 5 पॉइंट्स और 10 पॉइंट्स में लिख दो ना आप, बड़ा बड़ा पॉइंट्स आज हमने ये सीखा है ऐसा। तो यहाँ पे आप में से ही किसी को ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि आज आपने क्या सीखा, तो यहाँ पे क्योंकि कोई भी, हाँ मैं क्या फिर से रिकॉर्डिंग देखने जाती हूँ ना, मैंने 1-2 बार रिकॉर्डिंग पूरा हाँ, देखा है, तो वो मुझे पूरा देखना पड़ता है।
उसकी जगह पे अगर पॉइंट्स हो ना तो वो एकदम क्या बोलते हैं, रिवीजन हो जाता है, रिफ्लेक्शन हो जाता है। हाँ हाँ, वो अच्छी बात है, पर रिफ्लेक्शन आप में से किसी को 10 पॉइंट अभी जैसे चल रहा है, नीलम जी आप भी जब अगर आप ये इसमें हो जैसे मैं जैसे मेरा अभी क्या है ना, और हाँ मैं हाँ, योगा टीचर हूँ, मेरा क्लास चलता है इस टाइम पे, तो मैं अच्छा, मोस्टली रिकॉर्डिंग देखती हूँ। मैं इस टाइम पे बहुत कभी कभी ज्वाइन हो सकती हूँ, बीच बीच में से ज्वाइन होती हूँ, रोज मैं रेगुलर नहीं ज्वाइन हो सकती हूँ। तो इसमें तो आपको रिकॉर्डिंग तो देखनी ही पड़ेगी अगर आप नहीं ज्वाइन होते हो तो। हाँ, ये बरोबर है कि 10 पॉइंट कोई लिख सकता है, तो यहाँ पे जो भी अगर आप वैसे भी रिफ्लेक्शन तो लिखना चाहिए। अगर आप यहाँ पे कुछ सीखने आ रहे हो, आपने आज क्या सीखा, तो आप में से कोई कोई एक अगर ये लिखना चाहता है तो वो लिख के ग्रुप में डाल सकते हैं 10 पॉइंट कि आज के दिन सरिता जी, में। सरिता जी बहुत बहुत कुछ काम, बहुत कुछ अपने स्टेटस में भी डालती है। सरिता जी को पूछो, उनका क्या है, स्पीच भी बहुत अच्छा है, बोलती बहुत अच्छा है, तो वो शायद रिफ्लेक्शन डाल सके। तो सरिता जी से बात करो ना। मैं उसमें नवी हूँ, मुझे खुद को कंफ्यूजन है। ये चीज तो मैंने, हाँ मैं जो लिख रही हूँ नियमित है वो डाल सकती हूँ रोज का, पर मैं खुद इसमें नहीं हूँ, इसमें इतनी आगे नहीं बढ़ी हूँ, तो मेरे को भी कंफ्यूजन है। सरिता जी मुझे आप बहुत अच्छी लगती है, रेगुलर मैं आपके स्टेटस देखती हूँ, उसका स्क्रीनशॉट निकाल के फिर मुझे भी किसी को भेजना हो तो क्योंकि आप हमें जो पढ़ाते हैं उसका लिखते हो, मैंने देखा। धन्यवाद तो मुझे ये अच्छा किसी न लगता किसी है को जब 10 आप रिफ्लेक्शन तारीफ लिख के करते हो। भेजना पड़ेगा इसमें। तो यानी एक और बात समझ लीजिए, आपकी लाइफ बदलने की बात है यहाँ पे, तो आपको खुद को अपने लिए एफर्ट्स तो लगाने पड़ेंगे। हाँ ऐसा नहीं है कि आप पूरा ही आपको कहीं पे से एकदम यहाँ पे कुछ ना कुछ मिल रहा है आपको, तो अभी आपको कैसे लेना है ये आपके ऊपर है। हाँ, अगर आपको अपनी लाइफ चेंज करनी है तो आपको ये एफर्ट्स जो लगते हैं वो डालने पड़ेंगे। अगर खुद ही रिकॉर्डिंग करने। आपको हाँ लगता है कि बड़ी रिकॉर्डिंग है आप नहीं देख पा रहे हो, तो थोड़ा सा स्किप करके भी आप देख सकते हो जो जो हाँ, पॉइंट्स है। कभी कभी आप ये जो इसके सेटिंग्स के अंदर स्पीड होती है, तो अगर आपको लगता है कि स्पीड बढ़ाने से आप देख सकते हो, जल्दी फिनिश कर सकते हो, तो वो भी कर सकते हो। वहां पे स्पीड होती है वो स्पीड है ना, 1.25। यूट्यूब में आती है स्पीड। हाँ यस, 1.25 या 1.5 वो स्पीड पे करके भी अगर आप ऐसे हो कि जल्दी समझ सकते हो तो ऐसा भी कर सकते हो, वो आपके अच्छा, ऊपर है। और हाँ लिख हाँ दो सही। 10 पॉइंट, अगर आप ही लिख सकते हो तो लिख दो और वो पॉइंट्स डाल दो ग्रुप के अंदर, तो सबको फायदा होगा। हाँ, तो ये बहुत ठीक। ही अच्छी उन्होंने ये बात बताई है कि अगर आप ऐसे पर्सन हो, अगर मान लो आप अभी वैसे भी लिखते हो अपनी डायरी में आपने यहाँ पे क्या सीख रहे हो, तो वो भी आप खाली ये स्क्रीन मतलब उसका पिक्चर लेके भी आप डाल सकते हो, जो भी आपने दीदी सीखा, ऐसे जो भी नहीं हो आपने सकता पॉइंट कि सीखे। आपने जो नियमित लिखी है, आपने 10 नियमित जो लिखी है वो डाल सकते हो, तो हमें एक लिंक मिल जाता है कि हाँ ऐसा लिखना चाहिए। हाँ, मैं डाल दूंगी, मैं अपनी नियमित डाल आपकी दूंगी। जो नियमित है वही बेस्ट रहेगा कि आपका हुए नियमत वाला का है क्या ना, तो आप मतलब है, वो डाल देंगे अफर्मेशन? तो नियमत का इंग्लिश क्या होता है? अफर्मेशंस, ब्रेचिंग नियामत यानी ब्लेसिंग्स, आपकी लाइफ ब्लेसिंग्स। में जो अच्छा भी ब्लेसिंग्स है अभी। अच्छा, जो जो मेरा अच्छा हो रहा है वो मुझे नियमत बोलते हैं। यस यस, अच्छा, तो शुक्राना। ये आप ही डालिए दीदी, बेस्ट रहेगा। मुझे मैं डाल किसके लिए दूंगी शुक्राना अभी है? 1-2 दिन में, जितने भी मेरे नियामतें मतलब मैं लिखती हूँ, मैं इंग्लिश में वैसे लिखती हूँ पर मैं पिक्चर डाल देती हूँ। ठीक है, ठीक है ठीक है। ओके ओके, सो लेट्स रीड फर्दर। हाँ मुझे अच्छा लगता है। थैंक यू नीलम जी, इतनी तारीफ कर रहे हो उसकी। थैंक यू नहीं नीलम। सचमुच सरिता जी आप बहुत ही अच्छी है। थैंक यू थैंक यू। ओके, लेट्स रीड या अपने फर्दर। से ज्यादा गुरु यहाँ बैठे हुए हैं, इनसे थैंक यू बोलिए। हाँ जी थैंक हाँ, यू। तो क्या ये क्लास Absolutely नहीं true. होता तो मेरे में तो इतना फर्क आया है ना। मेरा एसिडिटी इतना था ना, कोई दवाई से ठीक नहीं हो रहा था। अभी 4 दिन से मुझे एसिडिटी नहीं है, मैंने अरे दवाई भी वाह, नहीं खाई है और मैंने इनो भी नहीं पिया है। जो रात को बोल तो के सोने को बोला है ना, वो बोल के सो जा। आज सुबह तो मैं जल्दी उठ गई अफर्मेशन बोलने के लिए। कल कल समझाया, परसों समझाया था कि सबकॉन्शियस माइंड सुबह सुबह बहुत जागरूक होता है। तो मैं आज तो सबको सबकॉन्शियस माइंड को सुनाने के लिए रोज से जल्दी उठ गई और उठ के तुरंत बोलने लगी।
मेरा पाचन तंत्र बहुत अच्छा है और मेरी एसिडिटी 0 हो गई है। मैं जो खाती हूँ अच्छे से पचता है। ये सब मैंने सुबह सुबह बोला उठ के ही। वाओ, अमेजिंग मैं बिलीव अमेजिंग, करने थैंक यू लगी फॉर हूँ, आप शेयरिंग जो सिखा नीलम रही जी। है ना। और मैं रात को सोने से पहले भी आपने जो बोला सबकॉन्शियस माइंड एकदम जागृत होता है तभी, तो सोने से पहले भी मैं जो चाहिए था वो बोल के सोई। और आज सुबह जल्दी उठ के पहले बोला मैंने। वाओ, तो मैं बिलीव अमेजिंग, करती हूँ, आपने लेकिन बहुत मेरा टाइमिंग नहीं सेट हो रहा है। मैं 4-5 बैच कर रही हूँ योगा की, और गीता सीख रही हूँ मैं। ये उनके पहले लिए लिखो आप गोल्डन बुक में कि मेरा ये क्लास के टाइम कोई डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, मैं ये टाइम बहुत अच्छे से यूज कर रही हूँ क्लास के नहीं, लिए। मेरा बैच है ही, मैं गीता जी सीख आप रही लिख हूँ। दो, आप लिख के छोड़ दो, यूनिवर्स देख लेगा। ये हाँ, बहुत सही ही बात अच्छी बात सरिता जी ने है। बताई, क्योंकि सही बात है, कभी आपकी कभी सही आप बात है। आपके अंदर स्टक होता है कि नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, मैं इतना टाइम नहीं निकाल पाऊंगी, ये चीजें आपके अंदर बहुत ही स्टक होती है। हाँ तो यहाँ हाँ पे हाँ ये हाँ। चीज आपको बहुत हेल्प करेगी जब आप अपने अंदर से ही कुछ ठान लेते हो। यहाँ पे मैं अनुष्का जी का आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दे सकती हूँ। उनको पहले ऐसा ही था कि वो 3 बजे नहीं अटेंड कर पाएगी क्लास, नहीं अटेंड कर पाई, एकदम माइंड में बैठ गया था, क्योंकि उसी टाइम पे कुछ ऐसी इनकी एक्टिविटीज थी दिन में। पर अभी उन्होंने ठान लिया कि मुझे करना है, तो यूनिवर्स कुछ ना कुछ उनके लिए ऑलरेडी रास्ते बना दिए हैं। और मैं उनको देखती हूँ, वो रोज ये यहाँ पे जैसे क्लास में होते हैं। तो ये भी ये जैसे आपके ही मैंने हाथ में है golden कि book पढ़ी है। कैसे रास्ते बनेंगे। हाँ हाँ जी। एक दिन भी नहीं छूटती, अभी ऐसा लगता कुछ ना कुछ लिखूं। अभी तक हाँ, मैंने 15 दिन से लिखना चालू कर दी। ये मेरा सपना था, 25 साल पहले का सपना था कि मैं हर एक पॉइंट, हर एक वर्ड्स लिखूं कि मेरी शादी से क्या क्या हो रहा था, क्या क्या नहीं, दिन भर की बातें, पर वो नहीं पा रही थी। पर मौका अभी दिया मुझे यूनिवर्स ने। वेरी तो आप नाइस। उसमें लिख के रख दीजिए, कोई इश्यू नहीं, आपका 100% रिजल्ट आएगा। जरूर जरूर। हाँ, आप और नहीं जब आप दोगे, क्लास सब में यूज हो, यहाँ करना पे ही नहीं जितने है। भी 15 नहीं, लोग हैं अभी क्लास में, तो एटलीस्ट आप वैसे ही नीलम जी ने आज बहुत ही अच्छी बात बताई है कि जब आप क्लास में आते हो, आप यहाँ पे 1-1.5 घंटा यहाँ पे बैठते हो, तो आप क्या सीखते हो ये लिखना बहुत जरूरी होता है। वैसे उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन, कि आप जब ये सब चीजें लिख देते हो, वो आपके माइंड में बहुत अच्छे से रजिस्टर हो जाएगी। जो भी यहाँ पे लोग हैं, जैसे ही आप बैठते हो क्लास में, नोटबुक पेन लेके ही बैठे, जो भी यहाँ पे ऐसे इंपॉर्टेंट, जैसे यहाँ पे नीलम जी ने इंपॉर्टेंट बातों नोट की कि हाँ मुझे, अगर मैं सुबह सुबह जल्दी उठती हूँ तब मेरा सबकॉन्शियस एक्टिव होता है, तो ये आपने लिख दिया कि व्हेन यू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग योर सबकॉन्शियस इज एक्टिव। इंग्लिश में लिखना है, हिंदी में, जो भी, ये ऐसे पॉइंट्स पॉइंट्स बना के आप लिख सकते हो। जो जब आप यहाँ अपने, हम जब स्कूल में जाते थे या कॉलेज में जब जाते थे, प्रोफेसर कुछ भी पढ़ाते थे तो हम पॉइंट्स के अंदर लिखते थे ये चीजें। तो यहाँ पे भी आपकी लाइफ को बदलने की बात हो रही है, कोई ऐसी बेसी बातें नहीं है यहाँ पे, ये आपके रोजमर्रा की लाइफ है, पूरी लाइफ को बदलने की बातें यहाँ पे हो रही है। तो 10 ग्रेटिट्यूड में लखी सकती है वो બધું नहीं, रोज ना ग्रेटिट्यूड इज अ डिफरेंट थिंग, वो नियामतें तो अलग है आपकी, जो भी नियामतें है। यहाँ पे तो आपको क्या लिखना है कि यहाँ के पॉइंट्स, अगर यहाँ पे क्या बातें हो रही है, जैसे अभी किसी से भी आप कुछ भी सीखते हो, जैसे नीलम जी ने आपने सीखा कि हाँ मुझे इनको जो एसिडिटी वगैरह का ये प्रॉब्लम चला गया, तो आपने क्या सीखा इसमें से? ये सीखा ना कि हाँ सुबह उठने के बाद तुरंत एफर्मेशंस करने से हमें ये फायदा होता है। या सरिता जी ने ये बहुत ही अच्छा एक पॉइंट बोला कि अगर आपको जो भी कुछ करना है तो यूनिवर्स पे छोड़ दो, वो आपको अरेंज करके देगा। तो ये सब चीजें मैं भी यहाँ पे कुछ बोलती हूँ कि हाँ, अगर यहाँ पे आपको रिलेशन को अच्छा करना है तो आप ही के अंदर है सब चीजें, आपको ही वो रिलेशन के बारे में अच्छा सोच के उसको आगे बढ़ाना है। तो ये जितनी भी चीजें आपको, आपके माइंड के साथ कोई कोई पॉइंट रेजोनेट करेंगे, आपको वहां पे एक रियलाइजेशन जैसा होगा कि यार ये तो मेरी लाइफ में बहुत ही सही बात बोली इन्होंने, तुरंत ही હવે लिख दो। 10 નિયામતમાં અમારે તો 3-5 તો અમે લખી નાખીએ ને પછી 5 નથી યાદ આવતા રોજ બધું લખાઈ ગયું ગ્રેટિટ્યુડ માં अमन से थैंक यू सो मच।
इनको Gratitude. 25 साल के बाद 2 बेटियां हुई है। कांग्रेचुलेशन। बताइए बेटिया, बताइए आप। हाँ, तो मम्मी आपको यहाँ पे क्या करना है कि कुछ भी अभी जैसे मान लो आपने ऑलरेडी 28 डे की प्रैक्टिस की हुई है ना, तो वो 28 डे को अभी इसमें आपने पूरे दिन नई नई नियामतें लिखी, राइट? अभी आपको क्या करना है कि कल के दिन में क्या अच्छा हुआ वो ढूंढ के लिखना है नियामतें। ओके, समझ में आया? मान लो अभी आपको नई, आपने ऑलरेडी 28 डेज के लिए नई नई नियामतें ढूंढ के लिख दी। हाँ, वो तो सब हाँ, लिख दी। तो अभी आपको नई नियामतें नहीं भी मिले तो कोई बात नहीं, आपको भी नई नई ढूंढनी है। अभी आपको अपने अगले दिन में क्या, धरती माँ पवन आकाश, इसकी 5 की रोज लिखनी शुरू कर दी। वो तो लिखना नहीं, वो तो आप आपके मन में दिल से बोल सकते हो, फील करके। नियामतों में आपको क्या लिखना है कि आपके दिन में कल क्या 10 अच्छी बातें हुई, ये आपको लिखना है। पर अभी हम यहाँ पे ये बातें नहीं करेंगे, नहीं तो लोग और कंफ्यूज हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे आपको, जिन लोगों ने ऑलरेडी ये प्रैक्टिस की है उनके लिए है ये, कि जिन्होंने ऑलरेडी 28 डे में नई नई नियामतें ढूंढ के लिख दिए, उनको यहाँ पे क्या करना है कि अगले दिन में, यानी कि कल के दिन में आपके साथ क्या क्या अच्छा हुआ, जो वैसे भी आप रॉक प्रैक्टिस में आपको स्कैन करते हो पूरे दिन को, तो उसमें आपने जो भी लिखा, जो भी सोचा था, वही आपको सुबह उठ के लिख देना है। दैट्स इट। फिर आपको इतना टाइम नहीं लगेगा सोचने में कि क्या 5 चीजें हैं। अभी समझ में आया मम्मी आपको? ओके ओके। हाँ, ओके। तो ये आपको करना है कि जो भी आपके दिन में क्या अच्छी चीजें हुई वो आपको लिखनी है। पर यहाँ पे जो भी नए पार्टिसिपेंट हैं, इनको रोज नया कुछ ढूंढ के लिखनी है 10 नियामतें। जितना भी टाइम लगेगा कोई बात नहीं, ये आपके अपने माइंड को ट्रेन करने के लिए, ये यानी ये लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ही ज्यादा। ओके, सो लेट्स रीड मुझे भी रोज की 10 नियामत लिखनी है, रोज के 10 ब्लेसिंग्स लिखने हैं। हाँ, मैं भी रोज बहुत right. लेट, ये मैंने भी ये ग्रुप बहुत लेट ज्वाइन किया था, पिछले 10 दिन से किया है, तो आगे क्या हुआ था मुझे पता नहीं है। हाँ, तो आपको रोज नई नई चीजें ढूंढ के 10 नियामतें लिखनी है। जो 10 नियामतों का तो और एग्जाम्पल में पढ़ के सुनाऊं दीदी? एकादा नहीं मैं नहीं, पढ़ मैं के सुनाती तो एग्जाम्पल लोगों को में डाल दूंगी, ग्रुप में मैं पिक्चर डाल दूंगी, आप भी पिक्चर डाल देना। अभी यहाँ पे जी तो जी फिर टाइम नहीं बचेगा ना, सबको जाना होगा इसलिए। राइट राइट। ओके, तो लेट्स रीड फर्दर। Amina, Yes, you can read. yes, yes. If you are moving around a lot, carry the photograph with you in your bag or pocket and make an effort to look at photographs 3 times during the day, following the same procedure. Now you know how to use gratitude's magical power to transform your relationships into magical relationships. Although it is not part of your requirement of this book, you may want to take this amazing practice and use it every day if necessary to make every relationship you have magnificent. You can use it on the same relationship as many times as you want. The more you can be grateful for the good things in your relationships, the faster every relationship in your life will miraculously change. यहाँ पे एक और बात आपको यहाँ पे समझनी है। अगर कोई रिलेशनशिप आपको बहुत अच्छी तरह से इंक्रीज करनी है, आपको बढ़ानी है, तो आप ये प्रैक्टिस रोज कर सकते हो, ठीक है? अगर वो रिलेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको बहुत ही जल्द इसको ठीक करना है, तो ये प्रैक्टिस रोज कर सकते हैं। पर कंफ्यूज मत होना, ये प्रैक्टिस आज के लिए ही है, ओके? पर ये आपके ऊपर है, आप अगर उसको रोज करना चाहे तो रोज कर सकते हैं, ठीक है? अनदर चीज, ये क्या होता है, कैसे ये काम करता है? अगर आप एक रिलेशन के बारे में लिखते हो, मैजिकली क्या होता है, बहुत सारे रिलेशन आपकी लाइफ में ठीक होने लगते हैं। ये सब कुछ मैजिकली होता है। क्यों? क्योंकि आप अंदर से बदल रहे हो, आप खुद अंदर से चेंज हो रहे हो, अपने आप को प्योरीफाई कर रहे हो, अपने विचारों को प्योरीफाई कर रहे हो।
तो इसकी वजह से आपका ज्यादा चेंज होती है चीजें आपके खुद के लिए। तो ये आपको यहाँ पे नोट करना है। तो मैजिक प्रैक्टिस नंबर 3। अनुष्का, आपको और भी कोई क्वेश्चन है या फिर पहले वाला ही रेज है हैंड? अगर आपके क्वेश्चन हो जाए पहले वाला ही है, lower your सॉरी, hand. वो पहले वाला ही है, सॉरी। हाँ हाँ, ओके। तो प्लीज lower your hand, so confusion now. ओके, तो मैजिक Magic प्रैक्टिस practice नंबर number 3। Yeah. Magic practice number 3. Magical relationships. Number 1. Repeat step 1 to 3 of magic practice number 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list. And at the end of each blessings, say thank you, thank you, thank you. And feel as grateful for that blessing as you can. Second, choose 3 of your closest relationships and collect a photograph of each person. Third, with the photo in front of you, write 5 things you are most grateful for about each person in your journal or on your computer. Fourth, begin each sentence with the magical words thank you, including their name and what you are specifically grateful for. Fifth, carry the 3 photographs with you today or put them in place where you will see them often. Look at the photographs on at least 3 occasions. Speak to the person's face in the photograph and thank by saying the magical words thank you and their name. Thank you, Helly. 6. Before you go to sleep, take your magic rock in one hand and say the magic word thank you for the best thing that happened during the day. Yes, so यहाँ पे सबको प्रैक्टिस अभी समझ में आ गई ना कि क्या करना है। तो नाउ लेट्स रीड द पावर। सबको समझ में आ गया है ना यहाँ पे? दीदी एक क्वेश्चन है, जैसा अपने जो दिन भर में जो अच्छी चीज हुई है उसके लिए मैजिक ये लेके बोलना है बोल के बताया, पर इसमें से अपने काफी भी चीज रह सकती है ना दीदी? हाँ, बहुत सारी चीजें आप सोच सकते हो, जो भी अच्छी अच्छी बातें हुई पूरे दिन में। ओके, यस। यानी वो मैजिक रॉक में कैसा है कि सोचना काफी सारी, जो भी सारी चीजें अच्छी हुई है वो सोचना तो सभी है, लेकिन एक बेस्ट, सभी में से बेस्ट मोमेंट है, उसको स्पेशली थैंक यू बोलना है। यस Okay. यस यस समीना, नाइसली डिस्क्राइब्ड। ओके, सो हमने कल कहाँ तक पढ़ा था? ये पढ़ना बाकी है। हाँ, ये 2 पैराग्राफ्स बाकी है, तो आमिना यू कैन नहीं, वो स्टार्ट हो रीडिंग। गया, वो हो गया, उसके नीचे का पॉइंट्स थे ना, वो बाकी था। ओके, हाँ, ये पावर ऑफ पॉइंट। हाँ ये हो गया था, राइट। तो पॉइंट्स ऑफ पावर है। ओके, सो लेट मी रीड एक्चुअली, so we can go. I will also explain and I will read also. So points of power. Every person is surrounded by a magnetic field. Wherever you go, the magnetic field goes with you. तो जहाँ जो भी आप एक मैग्नेटिक फील्ड कैरी करते हो, जो भी आप फील करते हो, उसी से आपका ये फील्ड मैग्नेटिक ओरा बनता है लाइफ में। तो ये ओरा आपका इतना पावरफुल होता है, अगर आप बहुत ही पॉजिटिविटी में ज्यादा रहते हो, बहुत ही खुश रहते हो, हमेशा शुक्राना में रहते हो, हमेशा प्यार की फीलिंग्स में रहते हो, तो आपका ओरा बहुत स्ट्रांग होता है। और इसी स्ट्रांग ओरा की वजह से लोग भी आपकी तरफ खींचे चले आते हैं। You attract everything through the magnetism of your field. Your feelings determine whether your field is positive or negative at any time. तो आपका ओरा कभी कभी नेगेटिव भी हो सकता है। नेगेटिव ओरा में लोग जाना पसंद ही नहीं करते। लोगों को कभी कभी कोई ऐसे लोग आपकी लाइफ में होंगे जिनको आपको मिलना ही नहीं है, क्योंकि वो हमेशा कंप्लेन करते हैं या हमेशा कुछ ना कुछ नेगेटिव बोलते हैं। तो आपको पता नहीं, उनके साथ बात करके आपको अच्छा नहीं लगता, या उनके घर पे जाके है, जो भी है। तो ये सभी में पॉजिटिव और नेगेटिव ओरा होते हैं, और वो कैसे क्रिएट होता है? आपकी खुद की फीलिंग्स की वजह से। ओके,
So every single time you give love through your feelings, words or actions, you add more love to the field around you. तो अपनी फीलिंग्स के थ्रू या एक्शन के थ्रू आप अपनी ओरा में और कुछ ना कुछ ऐड करते जाते हो हमेशा ही, जितना प्यार आप देते हो. The more love in your field, the more power you have to attract the things you love. और जैसे ही अगर आप ये पॉजिटिव ओरा में रहते हो, मैग्नेटिक फील्ड में रहते हो, तो क्या होता है, आप कुछ चीज सोचते हो और वो हो जाती है. अगर ये लॉन्ग टर्म आप ये ओरा में रहते हो, तो कभी कभी ऐसा होता है कि आप कुछ चीजें सोचते हो और वो आप अट्रैक्ट कर लेते हो अपनी तरफ. तो ऐसा ही होता है जब आप बहुत ही अच्छे पॉजिटिव रहते हो, बहुत ही खुश रहते हो, शुक्राना में, प्यार की फीलिंग्स में हमेशा रहते हो, जो चीजें करते हो उसके लिए भी पैशन फील करते हो, तो आप एक मैग्नेट की तरह ऐसी चीजें अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हो जो भी आपको पसंद है, जो आपको लाइफ में चाहिए. Imagine what you want is the size of a dot. For the force of love, what you want is smaller than a dot. तो प्यार का जो फोर्स है, जो प्यार का जो फोर्स ऑफ लव है, उसके लिए तो ये सब चीजें जो भी आपको चाहिए वो एक डॉट की तरह है. तो उनके लिए कोई चीजें, यूनिवर्स के लिए कोई चीजें छोटी या बड़ी नहीं है. ठीक है. You do not have to turn the negative into positive. Just give love for what you want, because the creation of what you want replaces the negativity. तो आपको ये नेगेटिव चीजों को नहीं हटाना है अपनी लाइफ से. आपको बस अपना टर्न वॉल्यूम जो है उसको टर्न अप करना है. किसका वॉल्यूम को? लव के, प्यार की वॉल्यूम को बढ़ाना है. ज्यादा से ज्यादा ऐसी चीजों के बारे में सोचना है जो आपको चाहिए, तो वो खुद अपने आप ही वो नेगेटिविटी को रिप्लेस कर देगा अपनी लाइफ से. Spend 7 minutes each day imagining and feeling having what you want. Do it until you know your design belongs to you, as you know your name belongs to you. अगर आपको कोई चीज अभी है जो आपको बहुत ज्यादा ही चाहिए, तो आपको 7 मिनट तक उसको रोज इमेजिन करना है और फील भी करना है कि अगर वो आ गया तो आप कैसा फील कर रहे हो. ये चीज को 7 मिनट रोज इमेजिन करना है. इससे क्या होगा कि आपके सबकॉन्शियस को ये बिलीफ हो जाएगा कि जो भी आप इमेजिन कर रहे हैं वो ऑलरेडी हो चुका है. और जब तक आपको ये ऐसा बिलीफ नहीं हो जाता, तब तक आपको ये रोज रोज रिपीट करना है. There is only one force in life, and that is force is love. You are either feeling good because you are full of love, or you are feeling bad because you are empty of love. But all of your feelings are degree of love. तो जो भी आपकी फीलिंग्स है वो कुछ ना कुछ लव की फीलिंग्स है. अगर कहीं पे आप अच्छा नहीं सोच रहे हो, आपको नेगेटिविटी आ रही है, वहां पे लेक ऑफ लव होता है, वहां पे लव की कमी होती है. तो आपको वहां पे डिग्री लव की बढ़ानी है. To lighten up about bad feelings, imagine bad feelings are wild horses you climb on. If you climbed on them, you can climb off them too. You can choose to get off that horse as fast as you jumped onto it. तो अभी अगर आपको इमेजिन करना है जो भी आपकी बैड फीलिंग्स है, कभी कभी जब आप किसी लोगों की वजह से या सर्कमस्टेंस की वजह से अगर आप किसी बैड फीलिंग्स में चले जाते हो, तब आपको इमेजिन करना है कि आप किसी वाइल्ड हॉर्स पे चढ़ गए हो. तो घोड़े पे चढ़ गए हो, आपको बस वहां पे से उतरना है और अच्छे वाले घोड़े पे जाना है जो आपको चाहिए. ठीक है. तो ये आपको इमेजिन करना है. Change what you give and you will always, without exception, change what you receive, because that is the law of attraction, that is the law of love. तो जो आप देते हो उसको चेंज करना है हमेशा आपको. अगर आप किसी के बारे में कंप्लेंट देते तो वही आपको मिलता है. तो अगर आपको अच्छा रिलेशन चाहिए तो वहां पे देना स्टार्ट करो. जितना आप दोगे वही आपको वापस मिलेगा. ये लॉ ऑफ लव है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन. ओके. तो ये आज का हमारा चैप्टर था. अभी आप यहाँ पे हार्ट थॉट लेंगे. ओके. तो हमने कल यहाँ पे देखा था, आई एम नाउ विलिंग टू सी ओनली माई मैग्निफिसेंस.
तो आज का हमारा हार्ट थॉट है, दिस ईयर आई डू द मेंटल वर्क फॉर चेंज। तो गो फॉर द जॉय, मेक दैट योर मोटो दिस ईयर, गो फॉर द जॉय, लाइफ इज हियर फॉर यू टू एंजॉय टुडे। तो अभी अपना एक मोटो बना लो कि आपको हमेशा जॉय में ही रहना है, आपको लाइफ को खुल के जीनी है, उसको सीरियसली लेके नहीं जीना है। तो इसी तरह से आपको अपनी लाइफ को जैसे एकदम लाइट वे में लेना है। इतनी सीरियसली लेके क्या करोगे, अपने फ्यूचर के बारे में इतना सोच सोच के क्या हो जाएगा। तो अच्छा है, जो भी पल है अभी है, प्रेजेंट मोमेंट है, इसमें जियो। ये मोमेंट को एकदम अच्छा वाला मोमेंट बना दो। अगर छोटी कोई चीजें हो रही तो उसको बड़ा बना दो, खुशियों को भर दो अपने आप को। तो ये आप ही के हाथ में होता है। सो दिस ईयर आई डू द मेंटल वर्क फॉर चेंज। तो ये आपको एक अपना कन्विक्शन बनाना है कि हाँ, मुझे ये साल में अपने आप में से बहुत चीजें हैं जो आप अपने आप को मुझे देनी है। ये साल में खुशियां देनी है अपने आप को। So many of you start New Year resolutions on the first of the year, but because you don't make internal changes, the resolutions fall away very quickly. Until you make the inner changes and are willing to do some mental work, nothing out there is going to change. The only thing you need to change is a thought, only a thought. Even self-hatred is only hating a thought you have about yourself. What you can do for yourself this year in a positive way? What would you like to do for yourself this year that you did not do for yourself last year? What would you like to let go of this year that you clung to so tightly last year? What would you like to change in your life? Are you willing to do the work that you will bring about those changes? तो जो भी हमारी लाइफ है, बिकॉज इंटरनल चेंजेस नहीं हम करते हैं, इसलिए हम अपने आउटर वर्ल्ड में भी वो चेंजेस नहीं कर पाते हैं। तो आज आपको ये रिजोल्यूशन, जब आप इनिशियली जब जनवरी आता है तो कभी कभी हम वेट लॉस का पता नहीं क्या क्या रिजोल्यूशंस लेते हैं, पर उस पर स्टिक नहीं कर पाते, हम उस पर तैर नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हमने इंटरनल चेंजेस नहीं किए हैं अपनी लाइफ में। जो मेंटल वर्क हमें करना चाहिए वो नहीं किया है। तो इसीलिए आपको भी ये मेंटल वर्क करना है। मिरर के सामने भी अपने आप को अच्छी बातें बोलनी है, अपने खुद के लिए भी एक प्यार क्रिएट करना है, अपने आप को भी प्यार देना है, जो आप लोगों को भी दे पाओगे और अपनी लाइफ में भी ला पाओगे। ठीक है? तो जो भी चेंजेस करने हैं आप अपने आप के लिए, आपको इंटरनली वो चेंजेस करने हैं, खुद को अंदर से बदलना है। दैट्स इट। तो आपको यही करना है। ये पूरा साल आप अपने आप को यही करेंगे कि अपने आप को कैसे आपको चेंज करना है, इंटरनली आपको कैसे चेंज करना है। तो वही आपको पूरे साल को यहाँ पे करके अपनी लाइफ को आगे 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 लेके जाना है। ओके? तो बतुल, आपको कोई क्वेश्चन है यहाँ पे? जी अलीफिया बेन, आपने कहा कि सबकॉन्शियस माइंड में आपको 7 मिनट्स आपको इमेजिन करना है कि आप क्या चाहते हो। तो सबकॉन्शियस माइंड में आप जस्ट वॉक अप एंड सिट देयर ओनली एंड टुक माय बुक। मैं जो बैठ के बाजू में रखती हूँ कि मुझे कहीं उठना ना पड़े, तो मैं लिखना चालू कर देती हूँ 2 दिन से। तो फिर उसके पहले हमको 7 मिनट्स इमेजिन करना है, तो तब तक तो हमारा कॉन्शियस सबकॉन्शियस इनएक्टिव होगा ना। मींस क्या कैसे हाँ, कर सकते अभी हैं? अभी आप Subconscious मेंटल mind, वर्क कर रहे हो, अभी अपने फर्स्ट तो आपको पॉजिटिविटी में आना है। तो अभी ग्रेटिट्यूड ज्यादा जरूरी है। जैसे ही आपका ग्रेटिट्यूड हो जाता है, उसके बाद तुरंत आप इमेजिन कर सकते हो 7 मिनट के लिए। ठीक है? तो ये अगर आप मान लो कि कभी ड्राउजी स्टेट में जाते हो, उस टाइम पे भी आप ये इमेजिनेशन स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि ड्राउजी स्टेट में आपका सबकॉन्शियस एक्टिव होता है। तो ये इमेजिनेशन आप कभी भी कोई भी टाइम पे वैसे कर सकते हो। हाँ, सुबह करना बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होगा, पर फर्स्ट अभी अब हमारे मेंटल पे काम कर रहे हैं, तो ग्रेटिट्यूड ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको पॉजिटिव सोच देने के लिए। जब आप ये लाइन में आ जाते हो, जब आप अपने आप से ही सुबह उठ के अच्छा ही फील करते हो, पहले ही सब आपके थॉट्स होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, उसके बाद आप ये भी कर सकते हो
कि चलो ग्रेटिट्यूड पहले नहीं करके आपने इमेजिनेशन मेडिटेशन किया, उसको भी हम मेडिटेशन ही बोलेंगे। आंखों बंद करके आपको इमेजिन करना है 7 मिनट तक अपने ड्रीम को, ठीक है? ओके, सो यू वेलकम। ओके, तो यहाँ पे मैं आज मेडिटेशन का ऑडियो प्ले करती हूँ, तो आप सबको मेडिटेशन करना है। One misconception of meditation is that if you meditate in your mind, grow. ये लो कुटिन्हो का मेडिटेशन है, तो ये मेडिटेशन आज हम करेंगे। और मुझे थोड़ा सा बच्चों को आज फर्स्ट डे स्कूल का है, तो मैं उनको उठाती हूँ, तो आप ये मेडिटेशन स्टार्ट करें। On the floor, cross-legged, or you may sit on a chair with your back straight. If you are in a wheelchair, put a small cushion to support your lower back, or just sit in a comfortable position. If you cannot sit or you cannot stand, that's okay. You may lie on your bed in a comfortable position. Palms on your lap, facing upwards. Your shoulders are gently relaxed. Your jaw is relaxed, and your chin tucked in gently towards your chest. Your tongue should be relaxed, not touching the roof of your mouth, but gently relaxed. Now gently close your eyes. Take a deep breath through your nostrils. Gently inhale, and through your nostrils, a long, slow exhale. Let's do this again. Through your nostrils, a gentle inhale. And out through your nostrils, a long, slow exhale. Let's do it once again. Inhale through your nostrils, and out through your nostrils, a long, slow exhale. Your eyes gently closed. Now take a deep breath. Inhale through your nostrils and hold comfortably for 2, 3, or 4 seconds. And then slowly exhale out through your nostrils. Let's do this again. A slow, deep inhale through your nostrils. Hold gently for 2, 3, or 4 seconds. And then slowly exhale out through your nostrils. Let's do this one more time. Inhale gently through your nostrils. Hold for 2, 3, or 4 seconds. And then slowly exhale out through your nostrils. Now with your eyes closed, continue breathing at your own pace. Inhale and exhale. And now listen. Listen to understand. Listen to feel. Do not listen to judge or overthink. Just listen. Remember, thoughts are part of meditation. Meditation is not about trying to stop your thoughts. Every time a thought pops into your head, just simply and gently let it go. Try not to buy into the story or the thought. Try not to run off with that thought. Just simply let it go and come back to your breath. That's all you have to do. Your mind may wander off every 2 to 3 seconds, and that's okay. But the more and more you practice this, the longer those gaps will get. So remember, thoughts are part of meditation. Do not try to stop your thoughts from coming. Now let go of any distractions, any outside distractions and sounds. Let them go. Take a deep inhale and a deep exhale. Now, I want you to visualize in your mind how you want your life to look and be.
your life. Forget about what's happening on the outside. Forget about what you watched in the news. Forget about what your friends are doing. Forget about what and how many lives you saw on social media today. I want you to visualize in your mind how you want your life to look and be. Dream without limits, but visualize how you want your life to look and be. How do you want your relationships to look? How do your relationships look right now? How do you feel in your relationships right now? What are some of the things you're doing? What are some of the things you're feeling? Now think about your partner. Visualize your relationship with your partner. How does that look? How do you feel? How do you want your relationship with your partner to be? Dream big. How do you want your relationship with your partner to be? Loving, full of care, full of respect, full of intimacy, filled with happiness, forgiveness, joy, and great health. Visualize how you want your relationship to be. And how will you feel when it's that way? How will you feel when your relationship is that way? Connect with that feeling deeply. Connect with that feeling. Take a deep breath in and a slow, long exhale out. Now visualize your health. How does your health look and feel right now? Visualize how you want your health to be. You are fit. You are strong. You are happy. Your immunity is strong. Even if you fall sick, you recover quickly. You have so much energy. You are healing. You are getting stronger and healthier day by day. Your cells work in perfect harmony with one another. You are aging gracefully. Visualize that. And how will you feel when this all happens? How will you feel when you have that health? Connect deeply with that feeling. Connect deeply. Now visualize your home environment. How do you feel when you are in that home environment? How does your home environment look to you right now? Now visualize how you would want your home environment to be. Dream big. How would you want it to be? Full of togetherness, full of happiness, joy, forgiveness, love, fun, great health. Visualize this deeply. And how will you feel when this all happens? How will you feel? Connect deeply with that feeling. Connect deeply. If your mind wanders, just gently come back to your breath. It's absolutely okay. Now visualize your wealth and abundance. How do you feel? Now visualize how you would want wealth and abundance to be in your life. You can do what you want, when you want. You can travel. You can buy nice things. You can give back. You can help those who need help. You can save well. You can spend well. You can give the best to you and your loved ones.
Visualize this deeply. And now, how will you feel when this happens? How will you feel? Connect deeply with that feeling. Connect deeply. Dream big, visualize big, and connect deeply with that feeling when you achieve what it is that you visualize. How it happens, when it happens, is not our concern. Our job is just to see it, feel like it's already happening. You may smile, you may feel shivers in your body. You may have tears of joy when you connect deeply with these feelings that you're visualizing. That's good for you. Connect deeply. Visualize and feel the feeling of the outcome. Take a deep breath. Slow inhale through your nostrils. Slow exhale. Now visualize your career, your business. How do you feel? How does it make you feel? Now visualize how you want your career and your business to be. You are happy, you're growing, you're earning more, you're getting respect, you're getting cooperation, you're making time for your work-life balance. You are helping other people grow. You are happy with every part of your career and your business. You know you have the strength to get through the ups and the downs. Visualize this. Visualize this deeply. And now, visualize how you will feel when this happens. How will you feel? Connect deeply with that feeling. Connect deeply. Now visualize yourself. You. Your personal growth, your journey. How does it feel? Now visualize how you want your life and your personal journey to be. You are filled with kindness, compassion, forgiveness. You're overcoming anger and irritability. You're complaining less, you're blaming less because it serves you no purpose. You are full of happiness and joy. You grow and you help other people grow. You give back. You add value and you make impact. And in the process, you feel fulfilled and happy. Visualize this journey. Visualize you in this journey. And now, how will you feel when all of this happens? How will you feel? Connect deeply with this feeling. Connect deeply. Now visualize your relationships with your friends, your colleagues, your family, your siblings. How does it look to you? And how do you feel? Now visualize how you would want it to be. Happy, solid, real, being there for one another, full of trust, full of loyalty, simple yet meaningful, simple yet abundant. Visualize this. Visualize this deeply, how you would want these relationships to be.
And now, how would you feel when this happens? How would you feel when all of this happens the way you want it to be, the way you dream it to be? Connect deeply with that feeling. Connect deeply. While you are sleeping, your body heals you. It works for you while you're asleep, balancing your hormones, repairing, rejuvenating you, protecting you. Your immune system's growing stronger while you sleep. Your cells work in harmony with each other. Your body, your heart, your mind deeply rest. And when you awake, you are filled with energy, strong and ready to take on the day. Connect with this feeling deeply. Hold on to it. Connect with this feeling deeply. Inhale deeply. A nice long inhale through your nostrils. And a slow exhale through your nostrils. Now slowly come back to the present. Keep your eyes closed. Listen carefully. Listen to understand. Don't listen to respond. Okay, so this meditation is almost finished. Okay, everyone, thank you so much for joining in today. Love, light, and abundance to all of you. See you all tomorrow. Thank you, Alisha Ben. Thank Alisha Ben. you. Thank you, everyone. Bye. Today's meditation was wonderful. Thank Yeah, you. yeah, it is. This meditation is wonderful. Okay, so thank you, everyone. Olivia. Thank you. Bye. Didi, Mummy. God bless you. Thank you, thank you. Have a everyone. good day. જોબ પર જવાનું છે? હા, જવાનું છે, જવાનું છે. Okay, so see you all tomorrow. Bye-bye. કાલે 2 વાર ફોન કર્યો તો તમે. હમ. હજી મોટુજાને કીધું તો 12 12:30 થશે આવતા. હા. કેટલા વાગે આવીશ? હું ફોન કરું તમારે.